Hello student, this is Pratibha Singh again with you in your online class. Student, in previous video we have completed our first part of the chapter The Fight from our NCERT book It So Happened. Student, in this video we will start our second part of this chapter. So student, open your book on page number 49. Page number 49. Part 2. In previous part we have read about Ranji and Suraj, how they fight with each other. Now in this video we will know what happened further. So let's start. Open your book on page number 49. When Ranji got home, after the fighting, when Ranji got home, जब रंजीत होम पहुंचा, घर पहुंचा, he found it difficult to explain the cut and bruises that show on his face, leg and arm. After the fighting with Suraj, when Ranji returned his home, it was difficult to hide his cuts, bruises on his face, arms and legs. जब वो घर पहुंचा तो फाइट के बाद उसके जो कट्स लगे थे, जो चोट लगी थी, वो बहुत घर वालों से छुपाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था. It was difficult to conceal the fact that he had been in an unusually violent fight and his mother insisted on his staying at home for the rest of the day. ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल ज़्यादा कॉन्सिल मतलब छुपा लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था घर वालों से कि ये वायलेंट फाइट जो करके आया है उसके बारे में छुपा लेना बहुत ही मुश्किल था. और उसकी मम्मी बार बार उसे इंसिस्ट कर रही थी कि जो बाकी का दिन है वो घर पर ही गुजारे. Evening 2, he slipped out of house and went to the bazaar, where he found comfort and solace. Solace means also the calmness, the comfort, in the bottom of vividly colored lemonade and a banana leaf full of hot jalebis. तो उसी इवनिंग वो स्लिप्ड आउट में चुपचाप घर से निकल गया बाज़ार की ओर, जहाँ पे उसने क्या लिया, एक लेमनेड की बॉटल ली और एक पूरा केले के पत्ते भर के गर्मा गर्म जलेबियाँ ली. He had just finished the lemonade when he saw his adversary. Adversary means enemy. Coming down to the road. जैसे ही उसने लेमनेड फिनिश किया तो उसने देखा उसका एडवर्सरी मीन्स उसका एनिमी. कौन था उसका एनिमी? Who was the enemy of Ranji? Suraj. When he finished his lemonade, he saw that his adversary means Suraj is coming towards him. His first impulse was to turn away and look elsewhere. पहली बार में उसने सोचा कि वो टर्न हो जाए, इधर उधर कहीं दूसरी जगह देखें. His second to throw the lemonade bottle at his enemies. और सेकंड जो उसकी थिंकिंग थी वो ये थी कि वो अपनी जो लेमनेड की बॉटल है वो किसके ऊपर फेंक दे, अपने एनिमी के ऊपर फेंक दे. बट ही डिड नाइदर of. Now turn the page on page number 50. Neither of these things. Instead, he stood his ground and scowled at his passing adversary. तो ये लगा कि उस अपनी लेमनेड की बॉटल उठाकर वो उसके ऊपर फेंक दे, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया. वो ग्राउंड पर पैर लटकाकर बैठा रहा. एंड स्काउल्ड मीन्स लुक्ड एंग्रीली, और नाराज़ होकर गुस्से से उसकी तरफ देखता रहा जब तक कि उसका एनिमी उसके पास से गुजर नहीं गया.
and the warrior said nothing, either scowled back with equal ferocity. और इधर वॉरियर ने भी कुछ नहीं किया, मगर वो भी एंग्रीली उसकी तरफ देखता रहा, उतनी बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उसकी तरफ देखता रहा. The next day was as hot as the previous one. जो अगला दिन था वो भी उसी दिन की तरह, जो पिछले दिन की तरह ही बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला था. Ranji felt weak and lazy and not at all eager for the fight. जो रंजी था वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ और लेजी फील कर रहा था, और आज वो ईगर भी नहीं था, फाइट करने के लिए ईगर भी नहीं था. His body was stiff and sure. Stiff and sure means hard, tough. After the previous day encounter, जो प्रीवियस डे में उसका एनकाउंटर हुआ था, उसकी मार पिटाई हुई थी, उसके बाद उसकी बॉडी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा टफ हो गई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा कठोर हो गई थी. But he could not refuse the challenge. Not to turn up at the pool would be an acknowledgement of defeat. मगर वो चैलेंज को रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से वो पूल को खो देता. इस वजह से वो अपने चैलेंज को रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकता था. From the way he felt just then, he knew he would be beaten in another fight. From the way, रास्ते में, he felt just then, वो महसूस कर रहा था जैसे कि he knew he would be beaten another fight, कि जैसे उसे पता हो कि उसे अगली फाइट में भी उसी को पीटा जाएगा, मारा जाएगा. Because he was thinner than him ना, उसके पास ज़्यादा ताकत नहीं थी सूरज से, इस वजह से उसे पता था कि उसे ही ज़्यादा मार पड़ेगी. But he could not accuse. Accuse means accept quietly. He could not accept quietly in his own defeat. मगर वो अपनी जो डिफीट है, अपनी हार है, कमज़ोर होने के बावजूद भी अपनी हार को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था. He must defy his enemy to last or outwit him, for only then could he gain his respect. वह डिफाई करना चाहता था, हरा देना चाहता था अपने एनिमी को, और क्योंकि उसे अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए वो उसे हराना चाहता था, उससे बराबर चैलेंज एक्सेप्ट करके और वो चैलेंज का सामना करना चाहता था. If he surrendered now, he would be beaten for all time. अगर वो अभी सरेंडर कर देगा, अभी हार मान लेगा, तो उसे हमेशा ही हार माननी पड़ेगी या पीटा ही जाएगा. But to fight and to beaten today left him free to fight. मगर अगर वो आज फाइट करता है तो वो इस बात के लिए आज़ाद रहेगा. But to fight and to beaten today left him free to fight and to be beaten again. अगर वो आज भी लड़ाई करता है तो वो फ्री हो जाएगा दोबारा से लड़ाई करने के लिए. इसके कहने का मतलब है कि अगर वो आज हार मान लेता है तो वो हमेशा ही हार का सामना करेगा, और अगर वो फाइट के लिए रेडी रहता है, भले ही वो हार जाए, तो आगे की फाइट के लिए भी वो फ्री रहेगा. As soon as he fought, he had a right to pool in the forest. अगर वो लड़ता है तो उसे भी अधिकार होगा उस पूल के ऊपर, उस नहाने के पूल के ऊपर उसे भी अधिकार होगा अगर वो लड़ता है. और अगर वो लड़ना ही छोड़ देगा तो उसका पूल से अधिकार ही ख़त्म हो जाएगा. नाउ कम ऑन पेज नंबर 51, पैराग्राफ नंबर 1. He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge. उसे आधी उम्मीद ये भी थी कि हो सकता है कि वॉरियर जो है वो चैलेंज ही भूल जाए. But these hopes were dashes when he saw his
opponent sitting stiff to the west on a rock on the other side of the pool. मगर जो उसकी होप थी वो तो बिल्कुल गायब ही हो गई जब उसने अपने ओपोनेंट को देखा, मीन्स अपने एनिमी को देखा, जो कि जिसका नाम सूरज था, जो कि बैठा विदाउट स्ट्रिपिंग टू द वेस्ट, मीन्स वेस्ट मीन्स कमर और स्ट्रिपिंग मीन्स विदाउट क्लॉथ, कमर तक कपड़े निकाल कर वो बैठा हुआ है ऑन द रॉक ऑफ अदर साइड ऑफ द पूल, पूल की दूसरी साइड पर जो रॉक रखी है उस पर वो अपने ऊपर के कपड़े निकाल कर बैठा हुआ है, मीन्स अपनी वेस्ट निकाल कर बैठा हुआ है। द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, जो वॉरियर है जिसका नाम सूरज है, ही वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर वो तेल लगा रहा है। ही सॉ रंजी beneath the salt tree and call a challenge across the waters to the pool. उसने रंजीत को, सूरज ने रंजीत को देखा, beneath मीन्स नीचे, he saw रंजी beneath the salt tree, उसने रंजीत को साल के पेड़ के नीचे देखा, and called a challenge across the waters of pool, और उसे चैलेंज दिया कि जो ये पानी है, पूल का पानी है, उसे क्रॉस करके, उसको तैर करके वो पूल की दूसरी साइड आए। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड, मीन्स वॉरियर शाउटेड दैट कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, इस साइड आओ, इस साइड तैर कर आओ और फाइट करो। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन ले डाउन बाई हिज ओपोनेंट, बट रंजीत अपने ओपोनेंट मीन्स अपने विरोधी के सामने कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं छोड़ना चाहता था जिससे कि उसके कमज़ोरी का एहसास हो, उसके हारने का एहसास हो। कम दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड बैक विद इक्वल विग्योर, विग्योर मीन्स स्ट्रेंथ, तो वो भी इक्वल स्ट्रेंथ से बोला तुम इस साइड आओ और फाइट करो। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी देयर कॉल्ड द अदर, और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल, तैर कर आओ और मुझसे फाइट करो, ये शायद तुम तैर ही नहीं सकते, ये पूरे जो पूल की लेंथ है उसको तैर ही नहीं सकते, ये अदर बॉय ने कहा, मीन्स सूरज ने कहा। बट रंजी कुड हैव स्वम द लेंथ ऑफ द पूल अ डजन टाइम विदाउट टायरिंग, एंड हियर ही वुड शो द वॉरियर हिज सुपेरियोरिटी। तो रंजी भी दर्जनों टाइम, मीन्स बहुत बार, दर्जनों टाइम उस ऐसे पूलों को वो तैर चुका था बिना थके, सर्वश्रेष्ठता है वो दिखा रहा था। सो स्लिपिंग आउट हिज वेस्ट, अपनी ऊपर की बनियान निकालते हुए, ही डाइव स्ट्रेट इनटू द वाटर, वो उसे डाइव लगा दी, किसमें, स्ट्रेटली डाइव लगा दी वाटर के अंदर, कटिंग थ्रू इट लाइक अ नाइफ, और वो पानी को ऐसे चीरता हुआ जा रहा था जैसे कि चाकू से कोई चीज़ काटते हैं। एंड सरफेस्ड विद हार्डली अ स्प्लैश, और सरफेस पर आया, उसके ऊपरी जो अपर पार्ट पर आया, बिल्कुल स्प्लैश करते हुए, पानी की एक आवाज़ को कहते हैं स्प्लैश। द वॉरियर्स माउथ हंग अप, द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन विद अमेजमेंट, और जो वॉरियर का जब डाइव लगाते हुए देखा उसने रंजी को, तो वॉरियर का मुंह अमेजमेंट के साथ, मतलब बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर खुला ही रह गया। यू कैन डाइव, ही एक्लेम्ड, उसने आश्चर्य से कहा, यू कैन डाइव, तुम डाइव लगा सकते हो। इट इज ईजी सेड रंजी, ट्रेडिंग वाटर
waiting for a further challenge. Can't you dive? It is easy, said Ranji. रंजी ने कहा ये तो बहुत आसान है. Treading water. वाटर में ऊपर की सतह पे पैरों को मारते हुए तैरते हुए रंजी बोला इट इज़ ईजी, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है. वेटिंग फॉर फर्दर चैलेंज, अगले चैलेंज का वेट करते हुए. कांट यू डाइव, तुम डाइव नहीं कर सकते? नो अदर, नो सेड द अदर, दूसरे बच्चे ने कहा नो. आई जंप स्ट्रेट इन, मैं सीधे इसमें जंप लगाता हूँ. बट इफ़ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक अ डाइव, मगर अगर तुम मुझे सिखाओगे हाउ टू मेक डाइव ना, आई कैन, मुझे अगर डाइव लगाना सिखाओगे, डाइव करना सिखाओगे अगर वाटर में, मैं कर लूँगा. इट इज़ ईजी सेड रंजी, रंजीत ने कहा ये बहुत ईजी है, सरल है. स्टैंड ऑन द रॉक, stretch your arm out and allow your head to display your feet. एक रॉक पर खड़े हो जाओ, स्ट्रेच करो अपने आर्म्स को और अलाउ करो अपने हेड को टू डिस्प्ले योर फीट. मीन्स अपने पैरों को डिस्प्लेस करो, मतलब ऊपर से छलांग लगा दो. द वॉरियर स्टूड अप, वॉरियर खड़ा हुआ. स्टिफ एंड स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा और रफ और टफ. स्ट्रेच आउट हिज आर्म, अपने आर्म को स्ट्रेच किया. एंड थ्रो हिमसेल्फ इनटू द वाटर, और अपने आप को पानी में फेंक लिया या गिरा लिया. ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज वैली, वो बिल्कुल सीधे अपने पेट की तरफ से गिरा. विद अ क्रैश दैट सेंट द वर्ड्स स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्री, और इतनी जोर से धड़ाम की आवाज़ के साथ गिरा कि जो ट्रीज पर वर्ड्स थी वो स्क्रीमिंग करने लगी, मतलब चहचहा के चिल्लाकर उड़ने लगी. रंजी डिसॉल्व इनटू लाफ्टर, और रंजी की हंसी छूट गई. नाउ पेज नंबर 52. आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी पूल, ही आस्क्ड. Ranji asked to the other boy, "Are you trying to empty the pool? क्या तुम पूल को खाली करना चाहते हो? क्या उसका सारा पानी बाहर गिरा देना चाहते हो?" As the warrior came to the surface, spout water like a small whale. जैसे ही जो वॉरियर है वो बाहर आया, पानी के सरफेस पर आया. Surface means the uppermost part of the water or thing, other thing. So when he come on the surface of the water na and spouting like a small whale, एक छोटी सी whale की तरह spout करना तो आप जानते ही ना, spout करते हुए जो पानी उसने अपने माउथ से निकाला, तो उसने रंजी ने कहा आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, क्या तुम पूल को खाली करना चाहते हो? Wasn't it good? asked the boy, eventually proud of his feet. क्या ये अच्छा नहीं था? दूसरे बच्चे ने पूछा. इवेंचुअली मीन्स बेशक अपने आप के ऊपर अपनी एक्टिविटी पे बिल्कुल प्राउड करते हुए पूछा उसने, क्या ये अच्छा नहीं था? नॉट वेरी गुड सेड रंजी, रंजी ने कहा नहीं, बहुत अच्छा नहीं था. यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए. सी आई विल डू इट अगेन, देखो मैं दोबारा इसे करूँगा. एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन अ रॉक, अब अपने आप को पुल किया रॉक के ऊपर से. he executed another perfect dive, और उसके then he finished another perfect dive. उसके बाद उसने जब अब पत्थर पे से रॉक पे से कूदा तो उसने दोबारा से एक परफेक्ट डाइव लगाई. The other boy wait for him to come up, जो दूसरा बॉय था वो उसका इंतज़ार कर रहा था कि वो बाहर आए. बट स्विमिंग अंडर वाटर, रंजी सर्किल्ड हिम,
भर अंडर वाटर स्विमिंग करते हुए रणजी ने उसके चारों तरफ सर्कल में गोल घेरे में तैर लिया एंड कम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड, और बाहर आया उसके पीछे से, मतलब तैरते हुए वाटर में, अंडर वाटर तैरते हुए ऐसे आया, उसके पीछे से वापस वो आया। हाउ डिड यू डू दैट? आस्क्ड द एस्टोनिश्ड यूथ। जो आश्चर्यचकित यूथ था, दूसरा लड़का था, उसने कहा ये तुमने कैसे कर लिया? कांट यू स्विम अंडर वाटर? आज रंजी ने कहा तुम अंडर वाटर नहीं स्विमिंग कर सकते? नो बट आई विल ट्राई इट, मगर मैं ये ट्राई करूंगा। द वॉरियर मेड अ ट्रिमेंडस एफर्ट टू प्लंग मीन्स जंप टू द बॉटम ऑफ द पूल। वॉरियर ने एक ट्रिमेंडस एफर्ट लगाई, बिल्कुल विशाल एफर्ट लगाई कि जंप करने की पूल के अंदर, बॉटम नीचे की साइड। एंड इंडीड ही थॉट, शायद उसने सोचा, ही हैड डन राइट नाउ, कि वो अभी ये कर लेगा। थ्रू हिज बॉटम, अपने नीचे से। लाइक अ डक रिमेन्ड एबव सरफेस, मगर वो बिल्कुल सरफेस पे बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था जैसे कि एक डक, एक बत्तख दिख रही होती है। रंजी हाउएवर डिड नॉट डिस्करेज हिम, मगर रंजी ने उसे डिस्करेज नहीं किया। इट वॉज नॉट बैड, ये बुरा नहीं था। ही सेड, रंजी सेड, बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, मगर तुम्हें प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। विल यू टीच मी? आस्क्ड हिज एनिमी, उसके एनिमी ने कहा, उसके ओपोनेंट ने कहा, क्या तुम मुझे टीच करोगे, क्या मुझे सिखाओगे ये? इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू, अगर तुम पसंद करोगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यू मस्ट टीच मी, तुम्हें मुझे सिखाना पड़ेगा। इफ़ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू, अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा। विल यू कम हियर एवरी डे एंड टीच मी, क्या तुम यहाँ पे रोज आओगे और मुझे सिखाओगे? इफ़ यू लाइक, सेड रंजीत ने कहा, अगर तुम्हें पसंद हो तो। दे हैड पुल्ड देमसेल्फ आउट ऑफ वाटर एंड वर सिटिंग साइड बाई साइड ऑन अ स्मूथ ग्रे रॉक। अब वो दोनों पानी से बाहर आ गए, पूल के वाटर से बाहर आ गए और एक स्मूथ ग्रे कलर की रॉक पर बैठ गए। माई नेम इज सूरज, सेड वॉरियर। वॉरियर ने कहा, मेरा नाम सूरज है। वॉट इज योर्स, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा क्या नाम है? इट्स रंजी, मैं रंजीत। आई एम स्ट्रॉन्ग, एम आई नॉट? आज सूरज ने कहा, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, क्या नहीं हूँ? बेंडिंग हिज आर्म सो दैट अ बॉल ऑफ मसल्स स्टूड अप स्ट्रेचिंग द वाइड ऑफ हिज फ्लैश। अपने हाथों को मोड़ते हुए, अपने हाथों में बॉल्स बनाते हुए सूरज ने ऐसा कहा कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, क्या मैं नहीं हूँ? यू आर स्ट्रॉन्ग, सेड रंजी, यू आर अ रियल पहलवान। पहलवान इज अ हिंदी वर्ड। तुम स्ट्रॉन्ग हो और तुम असली में पहलवान हो। वन डे आई विल बी अ वर्ल्ड चैंपियन रेसलर, और एक दिन मैं वर्ल्ड का चैंपियन रेसलर बनूंगा। सेड सूरज ने कहा, स्लैपिंग हिज थाई विद शुक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड। अपने हाथों को अपनी जांघों पे मारते हुए सूरज ने ऐसा कहा कि एक दिन मैं वर्ल्ड का चैंपियन रेसलर बनूंगा। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजी हार्ट थिन बॉडी। अब वो रंजी की बॉडी पे क्रिटिकली देख रहा था, बिल्कुल ही व्यंग्यात्मक तरीके से देख रहा था, जो कि उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा हार्ड और थिन थी, पतली थी। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ, ही कॉन्सेडेड मीन्स एडमिटेड
बट यू आर टू बोनी, तुम भी अपने आप में स्ट्रांग हो, मगर तुम बहुत ही ज़्यादा, बोनी मीन्स थिनी, तुम बहुत ही ज़्यादा पतले हो। आई नो यू पीपल डू नॉट ईट इनफ, मुझे पता है तुम लोग ज़्यादा नहीं खाते हो। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी, तुम्हें आना होगा और मेरे साथ खाना खाना होगा। आई ड्रिंक a सेर of milk every day. सेर is a unit of हिंदी मेजरमेंट, सेर, 1.25 सेर, 2 सेर। तो उसने बताया कि मैं 1 सेर दूध डेली पीता हूँ। We have got our own cow, हमारे पास अपनी गाय है। Be my friend एंड आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी, मेरे दोस्त बन जाओ और फिर मैं तुम्हें अपनी तरह ही पहलवान बना दूंगा। इफ़ यू आई नो इफ़ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर आई विल मेक यू अ पहलवान दैट इज़ फेयर, तुम मुझे डाइव करना और अंडर वाटर स्विमिंग सिखाओगे तो मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा। क्या ये फेयर नहीं है? मतलब क्या ये ठीक नहीं है? दैट इज फेयर, हाँ ये ठीक है, सेट रंजी, रंजी ने कहा। टू ही डाउट इफ ही वॉज गेटिंग बेटर ऑफ एक्सचेंज, ये इसमें कोई डाउट नहीं था, इस एक्सचेंज में कोई भी डाउट नहीं था। सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड वी आर फ्रेंड नाउ, यस। सूरज ने अपने आर्म्स यंगर बॉय जिसका नाम रंजीत था उसके कंधे पे रखे और कहा अब हम फ्रेंड्स हैं, ठीक है। दे लुक्ड एट ईच अदर विद ऑनेस्ट अनफ्लिंगिंग आईज एंड इन दैट मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर वॉर्न। अब वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टी से देख रहे थे, बिना पल के झपकाए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जहाँ प्यार और अंडरस्टैंडिंग ने जन्म ले लिया था। वी आर फ्रेंड्स सेट रंजीत, रंजीत ने कहा हाँ हम फ्रेंड हैं। द वर्ड्स हैज सेटल अगेन इन देयर ब्रांचेस, जो वर्ड्स थी जो वो उड़ चुकी थी वो दोबारा से सेटल्ड हो गई अपनी ब्रांचेस पे। एंड द पूल वॉज क्वाइट एंड लिम्पेड इन द शेड ऑफ द साल ट्री, अब पूल भी शांत हो चुका था और ठंडा हो चुका था किसके साल के छायादार पेड़ों के नीचे। इट इज आवर पूल सेट रंजीत, नोबडी एल्स कैन कम देयर विदाउट आवर परमिशन, हु वुड डेयर, ये हमारा पूल है और बिना हमारी परमिशन के यहाँ कोई नहीं आ सकता, देखते किसकी हिम्मत है यहाँ आने की। हु वुड डेयर, कौन हिम्मत कर सकता है। सेड रंजी, रंजी ने कहा स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वॉन द डे, ये स्माइल करते हुए कहा कि हाँ किसकी हिम्मत हो सकती है यहाँ आने की। बिल्कुल स्माइल करते हुए ऐसा उसने कहा कि जैसे उसने उसका आज का दिन बहुत ही अच्छा गया हो, उसने ये दिन जीत लिया हो। आई होप यू हैव एंजॉय द स्टोरी। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन एंड क्वेरी प्लीज़ टेक्स्ट मैसेज ऑन माई WhatsApp number. Thank you and have a nice day.